Fine. So here we are with the facts on current affairs related to farm sector reform bills. Can you see the PPT? Have you got the PPT on the platform as well as on the Telegram channels? So considering the problems that we were facing on Telegram on the Zoom Meet classes, so we've shifted back to our platform oriented classes, platform based classes. Until we fix the issues, we would be having the classes over here. एंड वो जो छोटा सा इशू हुआ है कि क्लास गलती से स्वॉप हो गई है करंट अफेयर्स की पॉलिटी में और पॉलिटी की करंट अफेयर्स में, उसे भी फिक्स कर दिया जाएगा. डन. So let's get started, and I request you all before we begin that many of you are complaining that तीन अलर्ट्स आते हैं मेल्स के ज़रिए, फिर उसके बाद SMS आता है, फिर उसके बाद पुश नोटिफिकेशन आता है. सो नाउ ऑनवर्ड्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू हैव द application installed so that we would be sending only the push notification. Mails and SMS related SMS oriented alerts would be a thing of the past from next 2-3 days. Okay, so all of you install the JV's IAS application and enable the notification related to your course alerts. Now, government has not given the effect to the bills. So at places I have mentioned it bill, and at other places I have mentioned it as an act. Okay, the three acts that were passed by the government related to farm sector reforms, they have not been implemented. So first thing first, I am going to explain you the fact which is related to this thing, right? The parliamentary proceeding around the, or the parliamentary nitty gritty around the implementation of the farm oriented laws. These ordinances were promulgated on June 5, 2020. So it had a time period of 6 weeks from the date of reconvening of the parliament. You all know that Article 85, that parliament has to take a session within not more than a gap of 6 months. Then there is another thing which says that the ordinance that is promulgated under 123, the ordinance shall lapse within 6 weeks from the date of first sitting of both the houses of the parliament. You all know this. Good evening, guys. Good evening, everyone. You all know this, right? Okay, so this is there. Now so this is there. Now coming here, so these things are there. Now there are 3 more steps for law to become a functioning law. Even if we know basic thing that the parliament has the power to make a law and to remove it from the law book. A law can be struck down by the judiciary if it is unconstitutional. But the passing of a bill does not mean that it will start working from day one. Okay, passing of a bill का मतलब अपने आप नहीं है कि वो पहले दिन से लागू होना शुरू हो जाएगा या कुछ ऐसा. ठीक है, इसका मतलब ये है आगे there are 3 more steps. The first step is the president giving his signatures or assenting to the bill. Which article deals with it? Please quickly answer this. Please answer this quickly. Article अब मत आंसर करना कोई भी जिसने पहले नहीं किया. Then the law comes into effect from a particular date, which is called as notification date from which it is notified. And finally the government frames the rules and regulations to make the law operational on the ground. ओए शर्म करो. 111 प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होती है ना कि बिल को पास करना है कि नहीं करना है. 123 तो ऑर्डिनेंस से डील करता है. जब मैंने वो चुटकी बजा के तुम्हें सिखाई थी पॉलिटी में कि चुटकी बजाई और हो गया बिल पास, ऑर्डिनेंस पास हो गई. 123 कहाँ से हो गया? 111 हुआ ना. यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करेंगे या नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट का साइन करना ज़रूरी होता है बिल पे. नाउ and finally the government frames the rules and regulations to make the law operational on the ground. The completion of these steps determines when the law becomes functional. Another related detail here, explanation to step 2, so that you remain clear about it. क्योंकि पता है क्या हो रहा है,
तुम ऑर्डिनेंस को, तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा, तुम ऑर्डिनेंस पढ़ के चले गए। उन्होंने निटिग्रिटी इसके अराउंड पूछ लेनी है कि अभी तक फार्म लॉज इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही। बिल पास हो गया है, एक्ट बन गया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन डेट में लोचा कर दिया इन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट इनको लागू करने के लिए रूल्स नहीं बना रही, क्यों? अब आगे पढ़ते हैं इसको। सेकेंड स्टेप की जो एक्सप्लेनेशन है, सेकेंड स्टेप इज डिसाइडिंग द डेट ऑन विच द लॉ कम्स इनटू द फोर्स, law comes into effect. In many cases parliament delegates to the government, because we have got parliamentary form of government, PFG. So parliament trusts the government that this law shall come into effect from the determined date, from the date as determined by the government. Bill states that the law shall come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of the act. Clear? Different date. अब ये हो सकता है कि सेक्शन, किसी लॉ का सेक्शन 3 लगा दिया जाए, सेक्शन 8 बाद में छोड़ दिया जाए, किसी लॉ का सेक्शन 8 लगा दिया, सेक्शन 11 छोड़ दिया। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है ये सब? बोलो। Done everyone? Okay. Now coming to the first one, the minute details we are going to talk about now. Please remember, why did I deal with the first part? So as to make you guys understand कि ये बिल को हम एक्ट भी कह सकते हैं और बिल भी कह सकते हैं। इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट बट इट हैज़ नॉट येट बीन नोटिफाइड। नोटिफाई भी कर दिया है, ठीक है, रूल्स फ्रेम नहीं करे। रूल्स जब तक तुम फ्रेम नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। स्टिल इट बिकम्स पर्टिनेंट फॉर अस since it has become an act already, and keeping in mind the UPSC's conventional approach of asking the questions from the acts, we are covering the salient features of these 3 acts now. Right, now let's get started. Farmers Produce, Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. You can mention act also. Okay, Promotion and Facilitation Act 2020. It seeks to provide, goody words out there, it seeks to provide for barrier-free trade of farmers' produce outside the markets notified under various state agricultural produce market laws. State APMC acts के beyond produce जो है farmer अपनी, अभी तक farmer is mandated. Why was I consuming so much of time explaining the concepts of the so-called means-oriented things, as you were commenting on chat box, on website, telegram, elsewhere. So my team brought around 130 such queries from different courses in which this course was telecast, wherein people are saying, sir wo to mains oriented hai. Now you would understand that we have understood the concept oriented part of it. It will be like very smooth sailing through these lines. We will be able to tread through these lines very seamlessly without any kind of obstacle. Otherwise you guys would have stopped me at every point. It seeks to provide the barrier-free trade of farmers' produce outside the markets notified under various state agriculture produce market laws. The act will prevail over state APMCs. Is this point to be noted for prelims? Yes, the point is to be noted for prelims. Right, now trade of farmers produce. The bill allows intrastate and interstate. Intrastate trade was allowed. Agriculture is a state subject. Still the central government, central union parliament has ventured into it. Okay, so bill allows the intrastate and interstate trade of farmers produce outside, number 1, outside the physical premises of market yards, grain markets as we know them, run by APMC committees. कमेटी जो मैंने बताया था, कमेटी का प्रेसिडेंट होता है, याद आ रही है ना वो सब बातें? फॉर्म्ड अंडर द स्टेट APMC एक्ट्स. क्लियर? सो ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस is allowed both. I want you to memorize these things here itself, intrastate and interstate.
other markets notified under state APMC acts such as Adani market, that means private. मोटा भाई market समझ रहे हो ना, who is मोटा भाई, तुम लोग समझते हो ना, मुकेश अंबानी है या जो भी है, ठीक है ना. नाउ प्राइवेट मार्केट्स एंड मार्केट सब यार्ड्स, marketing collection centers can also be made, and private farmer consumer market yards. Now the farmer is free. Please give it a reading before we proceed further. Shall we? Okay. Now, such trade can be conducted in any place of production. किसान का खेत है, मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था, इंडिया में ना पता है क्या होता है, एग्लोमेरेशन जानबूझ के करवाई था. मैं आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम एक्सप्लेनिंग यू सो एज टू एनेबल यू टू रिटेन बेटर. एग्लोमेरेशन, ठीक है, एग्लोमेरेशन कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनकी क्वेरी आई थी, ठीक है, तो तुम लोग बाजा राम से बाजा बजवा के आए हो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग वे से पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा स्कोर बढ़िया होगा. गारंटी तो देखो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कोविड जैसे ही एक एनिमी से ही यहाँ पे कॉम्पीट करा रहा हूँ तुम्हें, जिसका नाम है यूपीएससी. तो कोविड जैसे इन द सेंस यू कांट प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मूव ऑफ योर अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. नाउ देखो अभी तक क्या है, एग्लोमेरेशन क्या होता है, ये किसान आया ट्रैक्टर लेके, ठीक है, सनी देओल की तरह, फिर दूसरा किसान आएगा, फिर तीसरा किसान आएगा. अब ये किसान जहाँ से चल के आते हैं, तुम्हें मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो ये सारा फूड ग्रेन्स प्रोक्योर होता है, अब ये एफसीआई के गोडाउन में जाके स्टोर होता है, ठीक है. एफसीआई का गोडाउन कहाँ पे है, एक अलग जगह पे. कई बार ऐसा होता है ये उस विलेज में होता है जिसके किसान पहले यहाँ पे गड्डी लेके गए थे, मतलब समझ रहे हो ना, ट्रैक्टर लेके यहाँ से किसान पहले ही बेच के आया. तो ये जो राउंड ट्रिपिंग है, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं. अब अगर दोबारा उसी खेत के आसपास जहाँ रेलवे पटरी जाती है, रेलवे ट्रैक के, रेलवे स्टेशन के 8 किलोमीटर के अंडर एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं, ठीक है. अब तुम ये सोचो कि ये किसान जहाँ से आ रहा है उसके आसपास रेलवे स्टेशन था या रेलवे ट्रैक गुजरता था, तो क्यों ना इसी किसान के खेत में, हर किसान के खेत में जिस लेवल पे ग्राम सभा बनाई गई है, विलेज पंचायत जो बनाई गई है, 20,000 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, 15 to 20,000 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए ग्राम सभा बनाई जाती है. Because it is considered logical to have 5 sarpanches being paid out a salary for at least 15 to 20,000 people. Why can't we have a grain market for 15 to 20,000 people and a godown adjacent to that land itself? Why to have the middlemen like commission agents here? है ना? सो दिस इज़ दी लॉजिक हेयर. तो हम खेत के पास ही गोदाम बना दें, वहाँ पे गोदाम की कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी. अब ये ग्रेन मार्केट जो है ये अर्बन एरिया में होती है, 2 लाख पॉपुलेशन होती है, 3 लाख पॉपुलेशन होती है किसी टाउन की, वहाँ पे नेचुरली कॉस्ट ऑफ लैंड महंगा पड़ेगा, रेंटल कॉस्ट महंगी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा एफसीआई को. अब रेंट देना पड़ेगा, ये इसलिए जस्टिफाई किया जाता है कि द वेयर हाउस और द गोडाउन ऑफ एफसीआई शुड बी एडजेसेंट टू the grain market, and grain market happens to be a hustling bustling area which is very prominent area of a town or city, है ना. उसके आसपास ज़मीन महंगी होती है तो रेंटल कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है. तो क्यों ना इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, एफसीआई के ऑफिशियल्स को पैसे दिए जाएं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाए कि वो ग्रेन मार्केट में जाके अनाज परचेज करेंगे, और यहाँ पे उस किसान की ज़मीन किराए पे लेके जो पटरी के पास पड़ती है, ट्रैक के पास पड़ती है, वहीं पे गोडाउन बना लिया जाए. Why to call them to urban area and get looted? फार्मर्स को क्यों बुलाना है अर्बन एरिया में. डन, चलो आगे. नाउ such trade can be conducted in any place of production, collection and aggregation of farmers' produce. Such trade can be conducted at any place, be it a place of production, place of collection, फार्म गेट्स हो सकते हैं, वो फैक्ट्री प्रेमिसेस हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, सीलोज हो सकते हैं. सीलोज होते हैं जो टरपाउलिन कवर के, वो तुम देखते हो ना, नीचे लकड़ी लगा रखी होती है ताकि वो फूड ग्रेन्स गीले भी ना हो,
ठीक है, और उसके ऊपर वे पूरी ढेरी लगा देते हैं अनाज की बोरियों की, बोरी 1 बोरी 2 ऐसे करके पूरा उसे कवर कर देते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टोरेजेस, तो ट्रेड के लिए स्पेशल ग्रेन मार्केट क्यों आना है? स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेविंग एनी मार्केट फ्री। एपीएमसी एक्ट की जो मंडी होती है ना, मान लो ये मंडी है शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, 3, 4, 5 लाइक वाइज, तो वहाँ पे इनको मार्केट फ़ी देनी पड़ती है। किनको? एपीएमसी जो कमीशन एजेंट्स हैं जो एपीएमसी के अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो ये मार्केट फ़ी वगैरह स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट कर दिया गया है। एनालिसिस इज द एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट and market fee, fairs, markets, all this comes under another subject entry in the state list itself. Analysis जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, फैक्ट तो ये दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन ये मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होगी, उन पे क्या फ़ी लगेगी, क्या लगेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकने का कोई हक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो राइट। समझ में आया? Central government has no right to levy any market fee or to regulate the trade within the boundary of the state. Clear? Intra-state में central government दखल नहीं दे सकती। Ideally, logically और legally, constitutionally speaking, central government cannot levy any fee whatsoever on the trade taking place in the bounds of a state. Clear? Is this clear to everyone? Is there a technical glitch that you guys are facing? Just a minute. Now, are you guys facing any technical glitch? There seems to be... Okay, wait guys, just wait. Now, is it fine? Okay, just 1 minute. Now again it is happening. Just allow me a minute to shift my internet to streaming to some other Wi-Fi connection. Is it clear now? Is the streaming fine now, everyone? Is the streaming fine for everyone? Okay. So देखो ये क्यों कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन है। वी कैन अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ऑल्सो। Doctrine of colorable legislation means that you are trying to intrude into, central government is trying to intrude into the jurisdiction of state governments. Doctrine of colorable legislation was explained to you in your polity classes. Done? State governments are prohibited from levying any market fee, cess or levy outside APMC areas. ठीक है? और anything, even though this is the jurisdiction of the state government, central government is intruding into, encroaching upon the area meant for state governments. Clear? Clear? डन? क्लियर है? और ट्रेड एंड फेयर मार्केट फी इंट्रा स्टेट पे, विद इन द स्टेट मीन्स इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट कोई भी ट्रेडिंग हो रही है ना, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। फेयर्स एंड मार्केट्स करके एक एंट्री है, ठीक है। एवरीथिंग दैट हैपन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ फेयर्स एंड मार्केट्स कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर देयर इज एन एंट्री वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स कि कितने किलो है, स्टैंडर्डाइजेशन है, वो जो चीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, एक्सपर्ट्स ने पूछा कि आप ये मार्केट फ़ी वगैरह में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जस्टिफाइड इट्स इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एज एन एंट्री।
तोल भाव करने वाली जो एंट्री है कि उनका जो एक स्टैंडर्ड होता है, 1 किलो का मतलब कितना मास होगा 1 किलो में, व्हाट इज गोइंग टू बी द मास ऑफ द बट्टा, बट्टा यूज़ करते हैं ना वो वेइंग के लिए, वो स्केल एंड मेजर्स वाला जो चीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. हाउएवर just one aspect of market, that is weights and measures, cannot give the broad leeway, cannot give the wide amplitude to the central government or union parliament to capture or to encroach upon the entire market regulation by the state governments. Clear? वो तो एक एंट्री है, अब उस एक एंट्री के अंदर तुम घुस के थोड़ी ना बैठ जाओगे. Okay, so this is there. Now coming here, it also includes the products of poultry. ये तो वो items हैं जो 24+1 हमने शुगर केन की बात करी थी, ठीक है. अब इसमें देखो fruits भी हैं वैसे तो. Now fruits and vegetables you have to memorize. It also includes products of poultry, piggery, goatry, fishery. यानी कि ये आइटम्स भी जो कन्वेंशनली एग्रीकल्चर में नहीं आती, कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ये भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है. रॉ कॉटन एंड जूट, ये तो चलो एग्रीकल्चर में आती है. कैटल फॉडर, जो भैंसों को गायों को चारा खिलाया जाता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. यानी कि सरकार ने ये कह दिया कि एपीएमसी मंडी में तुम किसी भी चीज़ की खरीद पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, पिगरी फार्मिंग से रिलेटेड, गोटरी से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे तुम रोक नहीं लगा सकते. बस छोड़ा है तो किसको छोड़ा है, सोचो, फूलों को, ताकि वो रेगुलेटेड रहे, फ्लावर्स, ठीक है. नाउ तुम लोग कहीं और मत चले जाना, अभी वैलेंटाइंस डे बहुत दूर है, इधर आ जाओ वापस. एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेड, ऑर्डिनेंस, अब यहाँ पे मैंने ऑर्डिनेंस लिखा है, तुम इसको बिल कर सकते हो. बिल अलाउज द फार्मर्स, फार्म प्रोड्यूसर, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एज वेल एज एनीवन हु बाइज फार्मर्स प्रोड्यूस. The bill allows farmers, farm producer organization, as well as anyone who buys farmers produce for wholesale trade, for retail trade, end use, value addition, processing, manufacturing, export or consumption to engage in such intrastate or interstate trade. पढ़ो इसको. एलिजिबिलिटी में कौन कौन आता है, होलसेल ट्रेडर इसमें आता है, ठीक है. जैसे सफल है, सफल काफ़ी सारे, पूरे इंडिया में प्याज महंगे होते हैं, सफल के पास सस्ते बिक रहे होते हैं. सरकार होती है विफल, सफल होता है सफल, समझ रहे हो ना. रिटेल, बिग बाज़ार है, 610 है, कोई भी ऐसा मोर स्टोर है, चोर स्टोर है, समझ रहे हो ना बात को. इनको स्टॉकिंग करने के भी आगे, फूड ग्रेन्स को स्टॉक करना. अब देखो ये क्या करेंगे, फूड ग्रेन मार्केट में जो परचेजिंग होती है, ये अपना मार्केट प्लेस सेटअप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि दे आर अलाउड टू सेटअप मार्केट यार्ड्स, तो दे कैन सेटअप देयर ओन मार्केट प्लेस फर्स्ट प्लेस में, ठीक है. जस्ट 1 मिनट. अदर मार्केट नोटिफाइड अंडर स्टेट गवर्नमेंट, प्रोड्यूस आउटसाइड सेलिंग दीज, यहाँ पे, ठीक है. फ्री ट्रेड यहाँ पे अलाउ करता है ये बिल. उसके बाद यहाँ पे परचेज करने की बात आती है. फार्म गेट्स पे, फार्म प्रेमिसेस पे, सीलोस पे, कोल्ड स्टोरेज पे, कहीं भी प्रोडक्शन को परचेज किया जा सकता है. सच ट्रेड कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन, अग्रीगेशन, बी इट अ प्राइवेट प्लेस. आने वाले टाइम में शायद फार्म SEZs भी हो सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है. मोर स्टोर तुम देखते हो, बिग बाज़ार में सब्जी बिक रही होती है, तो बिग बाज़ार कल को चाहे तो ये यहाँ से डायरेक्टली मार्केट अपनी सेटअप करेगा, प्राइवेट मार्केट, वहाँ से परचेज करेगा और अपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में दी गई राहत के हिसाब से, लीनियंसी के हिसाब से, प्राइवेट गोडाउन में, कोल्ड स्टोरेज में उसे स्टोर कर लेगा, ठीक है. बेनिफिट क्या है इसका, मैंने तुम्हें बताया. इन इंडिया 40 to 45% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन इन इंडिया दे स्टेल, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, राइट. ये यहाँ पे फ़ायदा है. तो ये फ़ायदा होगा तो अपने आप प्रोड्यूस का प्राइस कम होगा. अगर एक बनाना वाला या टमाटर वाला 10 किलो आलू लेके आता है ना, तो वो उसमें से तुम्हें 10 किलो आलू वो लेके आता है 100 रुपये के, ठीक है. लेकिन तुम्हें वो क्या करता है, 75 किलो, 7.5 किलो ही वो बेच पाएगा, उसको पता है, क्योंकि 2.5 kg उसमें से ख़राब होंगे.
तो ये जो 2.5 kg ख़राब है उसका प्राइस 7.5 kg में ऐड कर लिया जाता है, प्लस 5 रुपये पर kg अपना मार्जिन जोड़ दिया जाता है। तो तुम्हारे लिए इसका प्राइस हो जाता है ले दे के 20 रुपीज़, होना चाहिए 5 रुपये मार्जिन जोड़ के 15 रुपये। तो ये जो इनएफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, एफडीआई आएगी इसमें, तो क्या होगा, जो सोफिस्टिकेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो आने लग जाएंगी। डन। सो दिस इज द पॉइंट इन फेवर, पॉजिटिव पॉइंट। नाउ a farmer, definition of a farmer, we know the definition of a farmer for the sake of PM किसान। अब तुम लोग अगर नहीं हो यूपीएससी वाले इंसान तो तुमने नहीं पढ़ा होगा वो आर्टिकल जो मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, तुम्हारे आईजीएस वाले पे, JVIS पे भी शेयर किया था, 9:30 बजे वो शेयर भी हो जाएगा, दोबारा स्केड्यूल किया है। तो फार्मर की डेफिनेशन वहाँ पे अलग दे रखी है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग दे रखी है, ठीक है। A farmer is defined as a person engaged in the production of farmers produce by self or by hired labor। जबकि हम पीएम किसान में दोगले इंसान की दोगली डेफिनेशन जब देखते हैं, तुम सब समझ रहे हो, शाणे हो तुम, दोगले इंसान की दोगली डेफिनेशन जब हम देखते हैं वहाँ पे पीएम किसान में कौन है, सिर्फ जो ज़मीन का ऑनर है उसको ही फार्मर माना गया है, ठीक है। यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर अंबानी ने कल को, अंबानी थोड़ा कम फेवरेट है, अदानी ने कल को किसी का खेत किराए पे ले लिया और लेबर को हायर करके लगा दिया, ठीक है, तो अदानी को भी फार्मर माना जाएगा। गजब है ये नादानी, समझ रहे हो तुम। तो पीएम किसान में जब इंश्योरेंस के बेनिफिट देने हैं उसमें पीएम किसान में नहीं कवर किया जा रहा उस इंसान को जो हायर्ड लेबर है, जो एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है, क्योंकि वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ वहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सरकार के पास पैसे कम है, हमें गरीब देश हैं। वो अलग बात है कि हमारा प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है, वहाँ हमें गरीब देश हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है कि तुम बड़े लोगों को बेनिफिट देने के लिए अगर वो हायर्ड लेबर भी ले आए, पेप्सी कोई ज़मीन किराए पे ले ले और लेबर को हायर कर ले, तो वो वैलिड है, तो उसको फार्मर की डेफिनेशन के अंडर माना जाएगा। डबल वैमी ये कह सकते हो ना, रजिस्टर्ड अंडर लॉ, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो लॉ में अपने आप को रजिस्टर कराएगी उसको ये बेनिफिट दिए जाएंगे। प्रमोटेड अंडर अ स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन अंडर द स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट टू बी एम्फेसाइज्ड अपॉन फॉर प्रीलिम्स। क्लियर। डेफिनेशन ऑफ फार्मर इन जनरल, ओवरऑल scheme of a central government, any organization, any farmer producer organization which is so recognized and registered under a law or a scheme of a state government shall also be covered under the definition of a farmer। clear? पीएम किसान से फंड नहीं मिलेगा बच्चे, ओके, पीएम किसान से फंड नहीं मिलेगा, वो अलग स्कीम है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि confusion around the definition of the farmer has been tilted in favor of the private sector in this case, whereas the definition of the farmer in PM Kisan scheme has been skewed in the favor of non-owners of the land। टिलर्स, एक्चुअल टिलर जो रेंटेड फार्मर्स हैं जिन्होंने ज़मीन ठेके पे लिया उसको कवर नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। Now an entity must be, however, to trade in scheduled farmers produce, an entity must be either a farmer producer organization or agricultural cooperative society or a person having permanent account number under Income Tax Act or any other document notified by the central government। रजत लास्ट पॉइंट ये है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है तुम उसको भूल जाओ, जो मैंने वो डेफिनेशन वाला बताया वो बाद में बताऊंगा। पॉइंट सिर्फ ये है, दिस लास्ट पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ फार्मर। I think you are talking about definition of a farmer. A farmer is defined as a person engaged in the production of farmers' produce by himself, or if there is a company like Pepsi, if Pepsi hires the land, Pepsi is not the owner of the land, Pepsi has leased into a land, piece of land, ठीक है, लीज इन कर लिया और उसके बाद यहाँ पे लेबर को हायर कर लिया, जिस वजह से यार ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीन को किराए पे लिया था और किसानों को ही वहाँ पे रेंटेड लेबर बना दिया था, रियायतवाड़ी सिस्टम ले आए थे, ठीक है। ज़मींदार बन गया था किराएदार और फिर उस किराएदार को लेबरर बना दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम को चलाने की बात की जा रही है। क्लियर।
scheduled farmer we will talk about in PM Kisan. ठीक है. Now promoted under a scheme of central or state government. Anybody who registers an organization registered under a scheme of central, any scheme of state or central government, ठीक है, और any association or group of farmers, जैसे गन्ना किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, गन्ना किसान संग्रह, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम में रजिस्टर्ड है तो वो भी कवर्ड, उसको फार्मर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. बस इतना सही पॉइंट था. अब क्लियर है सबको? नाउ हाउएवर टू ट्रेड इन स्केड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस an entity must be either a farmer producer however to trade in scheduled farmer, okay, I'm going to explain scheduled farmer here. Scheduled farmers produce, ठीक है, scheduled farmers produce का मतलब यह है agriculture produce specified and regulated under APMC Act. An entity must be either a farmer producer organization or agricultural cooperative. यानी कि देखो APMC Act में एक स्केड्यूल्ड फार्मिंग प्रोड्यूस का एक सेक्शन बना हुआ है, स्केड्यूल बना हुआ है. उस स्केड्यूल में हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी वो क्रॉप्स को मेंशन करती है जो जिसके प्राइस जो कि एपीएमसी कमेटी में ही सेल की जाएगी, ठीक है, वीट, राइस एट्सेट्रा. अगर कोई प्राइवेट कंपनी पेप्सी स्केड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस में, यानी कि उस प्रोड्यूस में जो एपीएमसी एक्ट के एक स्केड्यूल्ड में मेंशन्ड है, जो एपीएमसी एक्ट के एक स्केड्यूल में मेंशन्ड है, अगर उसमें कोई एंटिटी डील करना चाहती है तो एंटिटी मस्ट बी ईदर अ, यानी कि यहाँ पे जेन्युइनली जो फार्मिंग में इंटरेस्टेड है ना, जो सदियों से करते आ रहे हैं या जिन्होंने कोई सही मायने में जेन्युइन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है रिसेंट टाइम्स में भी, या कोई एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ही उसको अलाउड होगा कि वो स्केड्यूल्ड प्रोड्यूस में डील कर पाए. यानी कि ये एक सेफगार्ड है कि इनिशियल टाइम्स में, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म्स में, उस 2-4 साल के अंतराल में स्केड्यूल्ड फार्मिंग पैरेलली चलती रहेगी. यानी कि एपीएमसी एक्ट वाली कमोडिटीज़ में अगर किसी को डील करना है तो या तो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला हो. यानी कि पेप्सी वाला, अदानी वाला इसमें नहीं आ सकता. क्लियर? नाउ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन. अब यहाँ पे दूसरा चीज़ देखो, ये तो हो गया बेनिवोलेंट चीज़, ये तो तुम्हें लगेगा बहुत सही है, ठीक है. यहाँ पे देखो, अ पर्सन हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर अंडर इनकम टैक्स एक्ट. और ये क्या मतलब, ये क्या नौटंकी है, मजाक है. मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, ठीक है. यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर तो यार अदानी के पास में भी है, तो फिर तुमने ये बकवास क्यों लिखी है यहाँ पे? मतलब समझ रहे हो ना, जानबूझ के ये दिखाने के लिए. फर्स्ट क्लॉज तो देखो ठीक है, to trade in scheduled farmer produce the Adani must have to trade in scheduled farming produce Adani must have, what should Adani have? Adani, yes, उसका क्या फ़ायदा जब .2 लिखा है, ठीक है. जब यहाँ पे ये लिखा है कि किसी के पास, जिसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है, यानी कि तुम पता है कैसे याद रख सकते हो इसे, जिसके पास स्विस बैंक अकाउंट नंबर है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए या किसी और टोनेट ईटके के जरिए पार्टी को डोनेशन दे सकता है. बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है. तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में. मतलब लॉजिकली देखो, जिसके पास पैन होगा उसी के पास ही स्विस बैंक होगा. मतलब समझ रहे हो ना तुम मेरी जज्बात का यहाँ पे. बस उतना ही ज़रूरी है तुम्हारे लिए. अब याद भी रहेगा ये. ठीक है, सबको क्लियर है? परमानेंट अकाउंट नंबर तो यार तुम्हारे पास में भी है, मतलब तुम भी उस स्केड्यूल्ड प्रोड्यूस में डील कर सकते हो. जिसने भी लिखा है उसने जरूर पॉल साइंस की डिग्री करी होगी. नाउ पेमेंट टू फार्मर्स, अ पर्सन ट्रांजैक्टिंग विद अ फार्मर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स टू द फार्मर ऑन द सेम डे. ये अच्छा है. और विद इन 3 वर्किंग डेज इन सर्टेन कंडीशंस for any transaction of scheduled farmers produce.
एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड बाय द फार्मर, डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल, वो तो कुछ भी हो सकता है, आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड कार्ड, डोनेशन कार्ड, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। गोपनीय जो गुप्त दान किया है उसका कार्ड, कुछ भी हो सकता है वो। नाउ the fact of the only point of thing, the contention here is that central government is encroaching into the area meant for the state governments through not so logical ways. No fees to be levied by the states. The bill prohibits the state government from levying any market fee, cess or levy on the traders and electronic trading platform for any trade under the ordinance. Clear? Yeah, we are going to cover that. Okay, dispute resolution mechanism. The parties involved in a trade related dispute may apply to, first of all, SDM, as you can see here. If the disputant, if the party to the dispute does not feel satisfied here, then he can take on the dispute to the second level. Then the third one. Okay, DM appointed conciliation board in which ADM could be there, additional district magistrate, assistant district magistrate could be there. Then appellate authority, third level. Clear? Appellate authority जिसमें कलेक्टर खुद होगा या एडिशनल कलेक्टर नॉमिनेटेड बाय द कलेक्टर होगा, ठीक है. Decisions of the magistrate, before parties will have to the right to appeal against the decisions of the magistrate. तो मैजिस्ट्रेट विल अपॉइंट, पहले लेवल पे देखो SDM है फॉर अ रिलीफ थ्रू कंसिलिएशन, मतलब सुलहनामा. Magistrate will appoint a conciliation board and refer the dispute to the board. If the dispute remains unresolved after 30 days, parties may approach the magistrate for settlement of the dispute. The parties will have a right to appeal against the decision of the magistrate before an appellate authority, in which collector, लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है. अंग्रेज़ों के ज़माने का ये चलता आ रहा है. एडिशनल कलेक्टर नॉमिनेटेड बाय द कलेक्टर. क्लियर टू एवरीवन? Now, Essential Commodities Amendment Act. Quickly we will deal with this also. पहले इसको एक बार सारा go through कर लो, एक मिनट लगाओ. कोर्ट्स अल्टीमेटली देखो, कितने भी ट्राइब्यूनल बना लो, कितने भी ऐसे कंसिलिएशन बोर्ड्स या कुछ भी बना लो, एपेलेट अथॉरिटी बना लो, इसके बाद मैटर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा. जुडिशियल रिव्यू इज़ द एसेंशियल पार्ट फॉर एनी लॉ, एनी डिस्प्यूट हैपनिंग इन इंडिया, एक्सेप्ट फॉर द डिस्प्यूट्स विच आर हैपनिंग एज पर इंटर स्टेट या इंटर कंट्री बायलैटरल ट्रीटीज़, इंडो जर्मन कॉन्ट्रैक्ट, इंडो जापान, दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. अब ये तो डोमेस्टिक लॉ है, तो इस पर तो जुडिशरी का रिव्यू करना बनता है. रिवाइज्ड डन एवरीवन?
Now, Essential Commodities Act 2020. It amends the Essential Commodities Act 1955. The act empowers the central government to control the production, supply, distribution, trade. Act we are talking about this. Okay. As of now, the old act empowers the central government to control the production, supply, distribution, trade, and commerce in certain commodities. Bill, the 2020 Act basically seeks to increase the competition in agriculture sector and thereby increase farmers' income. It aims to liberalize the regulatory system while protecting the interests of the consumers. It aims to liberalize the regulatory system while protecting the interest of the consumers. Okay. It aims to liberalize the regulatory system while protecting the interests of the consumers. ये अच्छे अच्छे aims लिखे हैं. The devil lies in the details. Let's get started with the details then. Regulation of food items. The new act, Essential Commodities Act, empowers the central government to designate certain commodities such as food items, fertilizers, and petroleum products as essential commodities. Even the petroleum products which are used in agriculture, for example, diesel for generators or tube wells, fertilizers, food items. Central government may regulate or prohibit the production, supply, distribution, trade, and commerce of such essential commodities. Is there anything new in this? No. This is the same as 1955 Act. Clear? Bill provides that central government may regulate the supply of certain food items including cereals, pulses, potatoes, onions only under extraordinary circumstances, not always, not umbrella way. Okay, not in the umbrella manner, not always. Here it was always, ever existing regulation was there. ठीक है, continuous regulation. Here only under extraordinary circumstances. These include war, famine, extraordinary price rise, and natural calamity of grave nature. Otherwise, there will be liberalization, privatization, and globalization of agriculture. No license Raj, no Essential Commodities Act. Clear? Central government will determine. अभी क्या है ना कि अभी आप एक लिमिट से ज़्यादा कुछ भी स्टोर करते हो तो आपके ऊपर एक लिमिट लगती है. आप उस लिमिट से ज़्यादा कुछ स्टोर करोगे तो फूड इंस्पेक्टर आएगा या कालाखोरी इंस्पेक्टर आएगा, होर्डिंग इंस्पेक्टर, एंटी होर्डिंग इंस्पेक्टर will raid your premises and seal it. Imposition of stock limit. The act empowers the central government to regulate the stock as essential commodity that a person can hold. We are talking about 1955. The bill requires that imposition of any stock limit on certain specified items must be based on price rise and price rise alone. Imposition of any stock limit. शक्ति भोग आटा और एनी अदर आटा और टाटा आटा, कुछ भी, टाटा को नमक देखा है ना, वो टाटा का नहीं, अनिल कपूर वाला नमक है ना, तो वो कितना महंगा है, 100 रुपये की थैली है. तो यानी कि आने वाले टाइम में अगर नमक महंगा हो तो तुम्हें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए. अगर कोई भी कंपनी है, किसान जैम है, वो कितने भी टमेटोज़, कितने भी फ्रूट्स होल्ड कर ले, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लगता कि प्राइस राइज हो रही है तब तक उन्हें अलाउड है. क्यों अलाउड है? क्योंकि देखो, ये वेयर हाउस में स्टॉक करेगा तभी तो ये अपनी चिमनी प्लांट लगाएगा. अभी इंडिया में कंपनीज फूड प्रोसेसिंग के लिए, जैम बनाने वाली कंपनीज वगैरह क्यों नहीं है? हमारी कंट्री का नुकसान हो रहा है. क्यों नुकसान हो रहा है? ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री किसकी है? डेल मोंटे की है. डेल मोंटे की सॉस वगैरह, केचप वगैरह, या तुम जो जैम लेते हो निक बेकर से या कोई कहीं से भी, ठीक है, कोई मान लो किसी की जैम्स एंड जेलीज हैं या KFC की हैं, अब वो बेचारों को इंडिया में सारा कुछ महंगा पड़ता है, वो तुम्हें महंगा बेचते हैं, तुम्हारा नुकसान हो रहा है एंड यूज़र का. क्योंकि जो वेस्टेज हो रही है वो इसलिए हो रही है कि तुम स्टॉक एक लिमिट से ज़्यादा तुम अगर स्टॉक करोगे, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट तुम्हें पेनल्टी लगा देगा. अब इसको हटाया जा रहा है कि यू कैन स्टॉक एज मच एज यू कैन. हाउएवर, इफ देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस राइज, देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू आस्क यू टू सेल इट इन द ओपन मार्केट at a price which the central government will
स्टिपुलेट। क्लियर है, लॉजिकल भी है ना। स्टॉक करेगा, अभी पता है क्या है, वो स्टॉक करता है उतना, उसको ये कहा गया कि तुम 200 मिलियन टन से ज़्यादा आलू नहीं होल्ड कर सक मतलब आलू नहीं स्टॉक कर सकते। अब पेप्सी अगर 200 मिलियन टन से ज़्यादा स्टॉक नहीं करती तो वो इंडिया में प्लांट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चिप्स बनाने का, वो उतने ही कैपेसिटी का लगाती है कि 200 मिलियन टन यहाँ से आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वहाँ से और ख़रीदेंगे। अब जब ये कंपनीज और ख़रीदती हैं ना, तब ऑफ सीज़न हो चुका होता है। क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे कि फार्मर की इनकम इससे इंक्रीज होगी? हर चीज़ गलत नहीं है इसमें। फार्मर की इनकम इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि जब सस्ता मिल रहा होगा फार्मर को, सस्ता बेचना पड़ेगा फार्मर को, फार्मर और ज़्यादा डिस्ट्रेस सेलिंग करेगा, तो कंपनी उस टाइम पे सही मायने में परचेज कर लेगी। अभी क्या है, कंपनी 200 मेट्रिक टन ही परचेज कर पाती है, 200 मिलियन टन परचेज कर पाती है। और हालांकि फार्मर की मंडी में जाके अगर हम देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी 200 मिलियन टन ही करती है कंपनी, 1000 मिलियन टन है, लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, वो ही कमीशन एजेंट जो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, कोई 1 मिलियन टन स्टोर करके बैठा है, कोई 2 मिलियन टन, कोई 3 मिलियन टन, अब वो कंपनीज को महंगे दाम पे बेचते हैं। अब इसमें फार्मर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फार्मर को तो वही 5 रुपये किलो बेचना पड़ा था पटेटो, डिस्ट्रेस सेलिंग जब बम्पर क्रॉप हुआ था। अब शायद फार्मर को एक रीजनेबल प्राइस 10 रुपये किलो मिल जाएगा, क्योंकि इन कंपनीज को परमिशन मिल गई है कि ये कितना भी फूड ग्रेन, कितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ अनलिमिटेड मैनर में स्टॉक कर सकते हैं, until it leads to excessive price rise। अब एक चीज़ समझना, until price rise तो हो गया, बट इस सारी स्टोरी में मिसिंग पता है क्या है? Who will ensure that farmer is getting some minimum threshold price, some floor price below which he would not be able to, he will not be able to, he won't be made to sell। डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं होगी। तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो, तुमने ये मान लिया, हमने ये मान लिया कि डिस्ट्रेस सेलिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि बिग कंपनीज आर गोइंग टू बी having big pockets and big godowns to store the entire produce of the farmer, है ना। बट क्या तुमने ये सोचा कि there is a kind of the position is in not so proportional, here it is big, here it is small farmer would always be more vulnerable। राइट, स्मॉल फार्मर वुड ऑलवेज बी मोर वल्नरेबल, बार्गेनिंग पावर इनकी ज़्यादा है। तो सरकार को, फार्मर भी यही कह रहा है बेचारा, फार्मर ये कह रहा है कि सारा कुछ ठीक है, आप जो कह रहे हो वो आज किसान कमीशन एजेंट के हाथों लुटता ही लुटता है, उसको तो 5 रुपये से किलो, अगर कभी भी प्याज की बम्पर क्रॉप हुई है तो या तो वो प्याज अनियंस फेंके गए हैं, दे हैड टू डिस्कार्ड इट। पोटैटोज ऑल्सो, when demonetization had happened, nobody purchased potatoes from the farmers because the dealing happens in cash, so farmer had no option except to throw it away in the farmers vacant land, barren land elsewhere। ठीक है, तो फार्मर को क्या गारंटी है इस सारे केस में कि 10 रुपये वाला जो चीज़ है वो 5 रुपये में जो बेचनी पड़ती है उसके 10 रुपये भी मिलेंगे कि नहीं, राइट। ये बस इसमें कैच है। अदरवाइज़ मैंने तुम्हें बताया कि इंडिया में ये स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स की वजह से कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाती, बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाती तो वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, दे गो स्टेल, बट दे आर नॉट परचेज एट ऑल। ठीक है, स्टॉक लिमिट में भी इम्पोज ओनली इफ देयर इज़ 100% इंक्रीज। अब दिस इज़ कैची है, 100% मीन्स या तो अरहर की दाल अरहर मोदी हो जाएगी या प्याज का नाम वाजपेयी जी हो जाएगा, तब तक मतलब 100 रुपये किलो अनियन नहीं हो गया तब तक सरकार कोई लिमिट नहीं लगाएगी। इसको थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव करना चाहिए। यहाँ पे सरकार लिखने की जगह पता है क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, मैं थोड़ा सा एनालिसिस साथ साथ कर रहा हूँ, बेनिफिट्स इसके दो हैं कि तुम्हें एक तो याद रहेगा। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट फार्म सेक्टर रेगुलेटर होना चाहिए। तुमने शारदा स्कैम से बचाने के लिए रेगुलेटर बना दिया, सेबी बना दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया। फार्म सेक्टर रेगुलेटर बनाना चाहिए, वो ये डिसाइड करेगा
कि इतनी ज़्यादा अगर ये चीज़ हो रही है, उसमें आरबीआई के मेंबर्स भी होने चाहिए ताकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कितनी जा रही है ना, उसमें फार्मर एक्सपर्ट MS स्वामीनाथन जैसे लोग भी होने चाहिए, उसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, तब ये जाके सही होगा। गवर्नमेंट की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे देखोगे तो फिर स्कैम्स होंगे, 100% का मतलब क्या है ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल के केस में अगर आटा है नॉन पेरिशेबल है तो मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। द इंक्रीज विल बी कैलकुलेटेड ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग 12 मंथ्स और द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 years विच एवर इज लोअर। Yes, it is assumed, right? No, the thing is, farmer in the entire process, you have said that if the price rise will be there, then the stock holding program, then the stock limit on the company would be, private companies would be imposed. बट हैव यू सेड दैट इफ प्राइस राइज होगा तब तो तुम करोगे, बट प्राइस राइज होगा कोई तो बेस लाइन दो। इफ द प्राइस फॉल्स बाय मोर देन 20%, जैसे तुमने ये कहा है ना, इफ द प्राइस इंक्रीजेज, ये भी तो लिखो इफ द प्राइस डिक्रीजेज बाय 25%, 30%, तब हम सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से प्रोक्योरमेंट करने के लिए आएगी, या फिर तब सरकार क्या करेगी, कुछ एक्सेसिव प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम लेके आएगी। कोई इसमें वो ट्रिगर तो रखा ही नहीं है। ट्रिगर ये रखा है कि अगर 100% इंक्रीज हो जाएगी रिटेल प्राइस में तो सरकार ये मान लेगी कि कालाखोरी जमाखोरी हो रही है, दैट होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के लिए ये माल जमा किया जा रहा है। लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर ये कंपनीज मिल के कुछ प्रोक्योरमेंट ना करें तो सरकार गरीब आदमी के साथ होनी चाहिए ना। स्टेट स्टैंड्स फॉर द पुअर पीपल, स्टेट शुड स्टैंड फॉर द पुअर पीपल, विच इज व्हाट इज मिसिंग हियर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट विल डिसाइड। हु डिसाइड्स द प्राइस, हु डिसाइड्स द इंक्रीज इन द प्राइस, गवर्नमेंट विल डिसाइड। So far so good. So time for my dinner also, guys. I was preparing this PPT and all. I have another class at 9:30. We'll be meeting tomorrow. Okay, today's class was of 56 minutes, as I can see. As I told you in the beginning that please install JV's IAS application and enable the push notifications, the in-app push notifications to get the alerts about your classes. Even if you watch your class on website or on your laptop, but enable the push notification because we would be discontinuing the email alerts. Many of you are complaining that during the time when the exam is coming near, so email alerts are sent, SMS alert comes, then the push notification comes. So it is better for you to enable only the push notification. We'll continue tomorrow, right? So thank you, bye bye, see ya guys, bye bye.